students, what if I tell you that there is no need of studying 12 hours in a day to crack CA exam in upcoming attempt? You just need exact 30 days exam strategy. So in the next 5 minutes, I will give you the exact roadmap to complete all the 4 subjects, revise the subject and writing the mock, and you will walk into the exam hall with confidence. So let's get started. Why most of the students fail? The most of the students fail because they keep on starting new topics, but they never revise. They never write the mock, and which is the blunder they are making. But in this 30 days, हम इसको सही करेंगे. We will be working more on revision and mock part. So, most important thing that you need to take care is marks is not given only by studying. You study new topics again and again, but you will never going to secure the marks. So, marks will be given only when you reproduce in the exam. जैसे आप लिखोगे एग्जाम में मार्क्स वैसे ही मिलेंगे. Got it? So let's get started with our 30 days roadmap. What I have done is like ये 30 days को मैंने 20 and 10 days में divide किया है. In 20 days, we will be completing the whole subject in proper way. All the 4 subject, proper revision, and all the chapters will be done. In the next 10 days, we will be do more revision and will be writing the mock. So 20 and 10. What we will do in 20 days? Basically, हर student को एक ही काम करना है, एक समय पे एक ही subject पढ़ना है. That is, if they are starting with accounts, then the next 5 days they has to follow accounts only. Accounts 5 दिन, then comes your law for 5 days, then comes your quantitative aptitude, and then comes your economics. So if you will devote 5 days every 4 subject, then 20 days you will complete whole cycle. अब इसी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं. They keep on changing the subject, they keep on mixing the subject, which is not advisable, because जब आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो तो पूरा का पूरा एनर्जी जब एक सब्जेक्ट में डालते हो, आप उसी के सराउंडिंग में घूमते रहते हो. कभी अकाउंट्स का कोई मॉड्यूल 1 ले रहे हो तो कभी 3 ले रहे हो, तो लेकिन अकाउंट्स के ही एक ऑरा में रहते हो, एंड दैट हेल्प्स द स्टूडेंट टू रिकॉल द थिंग्स फास्ट. बट अगर सब्जेक्ट चेंज करते रहोगे तो पहले अकाउंट्स कर रहे हो वो भी आधा रह जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स कर रहे हो वो भी बहुत परफेक्टली नहीं होगा, फिर आप उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी इंट्रोड्यूस कर दोगे तो वो भी परफेक्ट नहीं होगा. तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल नॉट बी एट ऑल सैटिस्फाइड. गॉट इट? Now I advise you what you have to do in this 5 days. 5 days में you first have to complete your pending topics. So importance उनको देना है, कोई topic important है और pending रह गया है, आपको उसको first priority देना है. Second, revise completed chapter. Those chapter you have already done, practice नहीं हुई है लेकिन पता है concepts क्या है, उसको एक बार revise कर लो. Then after you have done with the pending topics and recalling the old concepts, उसके बाद आप आ जाओ ICAI के questions में. So important thing here is you need to take care is सबसे पहले हमें अपने institute के module का RTPs, NTPs आपको उसके ऊपर वर्क करना है. अब यहाँ पर एक ही काम करना है, आपने इसको अच्छे से जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने आप परफेक्ट बनोगे. आप अपने नोट्स बनाओ, आप आपके 1 day रिविजन प्लान बनाओ, एंड यू हैव टू डेली रिवाइज द थिंग वॉट एवर यू हैव डन फुल डे. मॉर्निंग से लेकर एक से टाइम 9 o'clock तक आपने जो भी पढ़ा है या 8 o'clock तक आपने जो भी पढ़ा है उसको लास्ट के 2 घंटे में लाइक 8 to 9 और 8 to 10 आप उसको रिविजन करो. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इन दिस 5 days, सब्जेक्ट पे फोकस करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कंप्लीट करो, प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड रिवाइज. सो अब ये 5 days में और कैसे करोगे? मॉर्निंग आवर्स इज ऑलवेज एफिशिएंट आवर्स. तो आई विल सजेस्ट यू कि आप मॉर्निंग में कभी भी हार्ड टॉपिक्स उठाओ, थोड़े एनर्जेटिक रहते हैं,
तो नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, ओके, जो कि आपके पेंडिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और अगर आपके बहुत परफेक्ट नहीं है तो उसको कंप्लीट करो। आफ्टरनून व्हेन इट बिकम्स डल, थोड़ा क्योंकि काफी एनर्जी मॉर्निंग में लग चुकी होती है, तो सेकेंड वाले में आप प्रैक्टिस में जाओ। इन द नाइट यू नीड टू रिवाइज एवरी टॉपिक, जो कि मॉर्निंग से आप जो पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो माय सजेशन इज इस पार्ट को नॉन नेगोशिएबल रखो, इस पार्ट को आपको रिविजन करना ही है, इसमें कोई भी नए टॉपिक्स नहीं उठाना है। सो राइट वन फुल मॉक when you have done in the last fifth day. So I'm going to give you a plan, 30 days plan, जिसका आप स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लेना। उसमें मैंने लिखा है कि आप 4.5 days जितना आप पूरे स्टडी करोगे, एंड लास्ट डे में दैट इज द फिफ्थ डे 3 घंटा बैठ के एक मॉक लिखोगे और उसके लिए 2 घंटा और निकालोगे जो खुद एनालिसिस करोगे। सो एनालाइजिंग योर ओन रिटन आंसर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उससे आपको ये लर्निंग होगी whether you are doing perfectly or not, or where you are making mistake and you have to improve. Got it? So यही वाला स्ट्रैटेजी 5 days का रखो, 100% आप कंप्लीट करोगे एंड कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट करोगे। लेट्स मूव कि 10 डेज में क्या करना है। 10 डेज में भी सिंपल है, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने 5 डेज में पढ़ा है, से पहले अकाउंट्स आपने मॉक लिखा एंड नाउ द बुक इज क्लोज, फिर आपने लॉ में आए, फिर आप इकोनॉमिक्स में 5 डेज अलॉट किए, एंड लास्ट का 5 डेज यू हैव अलॉटेड इनटू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसका भी मॉक लिखा एंड द 20 डेज अच्छे से हो गया। नाउ कम्स अगेन नेक्स्ट 10 डेज विच इज वेरी क्रूशियल। इसके अंदर क्या करना है, यू नीड टू जस्ट रिवाइज whatever you have studied, no new things you have to take care, कुछ भी नया इंट्रोड्यूस प्लीज मत करना। बस इसमें ये रखना है कि आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करें, और एक और मॉक हम लिख सके तो बहुत अच्छा होगा, जिससे आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। एंड in this you have to allot 2 days per subject. So if you have 4 subjects and you are allotting 2 days per subject, means 8 days is gone, and keep next 2 days as a buffer day, a relaxing day, थोड़ा सा शांत दिमाग से हम बैठ के सोचे, रिवाइज करें, ऐसा होगा। So 8 days की strategy plus 2 days relaxation is very much important before appearing to the main एग्जाम ऑफ ICAI। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ इस 2 दिन में प्रॉपर कैसे यूटिलाइजेशन करना है। सो ईच डे, जैसे मैंने लिखा है, यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस MCQ, more of numericals, revise your mistake book, and on day 2 write 1 mock. So आप इसको कैसे स्ट्रक्चर करोगे? If you have started with accounts and you are thorough कि all the chapters I have done, तो आप क्या करो, अपने पहले कुछ घंटे 4 to 5 आवर्स पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में लगा दो, एंड यू मस्ट हैव मेंटेन एनी बुक जिससे आपने प्रॉपर नोट्स वोट्स सब बना के रखा होगा, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो। एंड देन नेक्स्ट 10 आवर्स आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगाओ, लॉट ऑफ क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन बैंक हो, चाहे MTPs का हो, RTPs का हो, या फिर हमारे स्टडी मटेरियल का हो, PYQs का हो, पहले उसको अच्छे से कंप्लीट करो। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पे वर्क करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको मार्क्स देने वाला है। एंड देन वंस यू आर डन, जब आपका 1.5 days निकल जाएगा, देन प्लान फॉर 1 मॉक। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट द मॉक, बट यही एक हमारा विक्ट्री होगा अगर हमने मॉक लिखा तो मॉक लिखो, उसको वापस से एनालाइज करो, एंड योर 2 days टोटली एंड्स विद कॉन्फिडेंस। मॉक लिखने से एक चीज होती है कि हम टाइमर लगाना सीखते हैं, टाइम पे पेपर कंप्लीट करना सीखते हैं, प्रेजेंटेशन देना सीखते हैं, और थोड़े एग्जाम एंजाइटी और स्ट्रेस जो होता है वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं, सो दैट व्हेन आवर D-Day is there we can manage it properly. Okay, so this is how you have to complete 2 day strategy. What is a success formula? You first have to go in, take knowledge जो 20 डेज में आप करने वाले हो, फिर नेक्स्ट 10 डेज में आप रिवाइज प्रैक्टिस करोगे, इवन 20 डेज में भी करोगे, एंड ऑल्सो यू विल एनालाइज योर मॉक।
which is very much important, and this is what exactly any rankers are doing. This is actually a ranker level performance. So इसको continuously करने से and अपने पे trust बनाए रखने से कि मैं कर सकता हूं और हो जाएगा मेरे से, ये अगर आप सोचोगे या माइंडसेट को एकदम परफेक्ट अलाइन करोगे तो ये आराम से हो जाएगा. So students, I have given on the screen that 30 days what I have just discussed with you in a complete format. So आप देख सकते हो कि 5 days accounts, 5 days law, 5 days QA and economics. आप इसको शफल भी कर सकते हो as per your choice. अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए वीडियो पॉज करके एंड देन टेक अ प्रिंट. यही प्रिंट को आप अपने वॉल पे लगाओ, स्टडी रूम में लगाओ एंड डेली टिक मार्क करो एंड स्टडी कंप्लीट करो. एंड दिस इज व्हाट दैट टिक विल हेल्प यू टू गेन मोर कॉन्फिडेंस कि एक एक दिन आप कंप्लीट कर रहे हो और एक एक टिक लग रहा है. दिस इज व्हाट इज आवर गोइंग टू बी विक्ट्री. सो नेक्स्ट 10 डेज की भी टारगेट मैंने दिया है, जहां पर मैंने बोला है रिवाइज करो, मॉक लिखो. सो अकाउंट्स 2 days, लॉ 2 days. यू कैन सी ओवर हियर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड देन this relax for the ICA exam. So you need to relax, you have to revise, you have to work for the first paper. So ज्यादा stress नहीं लेना है, confidently exam hall में जाना है. और so don't forget to subscribe my channel for more study skills and strategies. And don't forget to share this plan with your friends. Bye bye. Best of luck.